140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में वैसे तो कई खेल हैं जो अपने स्तर पर बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों की चकाचौंध पे ये खेल अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं और उन्हीं खेलों में से एक है वॉलीबॉल। लेकिन भला हो पवन कुमार पटौदिया जैसे लोगों का जो आज इस खेल को भारत के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आईपीएल के तर्ज पर इस वक्त देश में भी वॉलीबॉल को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश चरम सीमा पर है और इस प्रयास में महानगर कोलकाता के बेहला ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खासतौर से महिलाओं के लिए थंडरबोल्ट कप का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता थंडरबोल्ट की ओर से किया गया, जिसके अध्यक्ष उद्योगपति पवन कुमार पटौदिया हैं। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में बंगाल की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबला ईस्टर्न रेलवे और डीजे स्पाइकर्स के दरमियान खेला गया, जिसमें ईस्टर्न रेलवे ने डीजे स्पाइकर्स को सीधे 3-0 से मात दी। इस अवसर पर श्री पटौदिया ने कहा कि वॉलीबॉल भारत में हमेशा एक बहुत लोकप्रिय खेल रहा है और हम इस खेल को बढ़ावा देने और इसे एक सफल और टिकाऊ व्यवसाय बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि प्राइम वॉलीबॉल लीग एक बड़ी सफलता होगी। उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल खेल में बहुत स्कोप है और मैं चाहता हूं कि आने वाले सालों में भारत इस खेल में विश्व विजेता हो। इतना ही नहीं, उनकी ये सोच है कि आने वाले साल 2036 तक भारत वॉलीबॉल में कम से कम 2 मेडल जीते और वे इस मिशन को चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। वहीं उनके बेटे सुमेध पटौदिया ने भी कहा कि उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि खेल को देश के कोने कोने में पहुंचाया जाए और इसके लिए देश के सभी पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी को इस मंच से जोड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें रुचिका गुप्ता, डॉली जैन, अर्जुन अवार्डी डोला बनर्जी, अर्जुन अवार्डी जॉयदीप कर्मकार, चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल झा लियू, चेताली दास, सोफिया खान, सुष्मिता आचार्य व कई अतिथि शामिल थे। Good evening, everybody. I welcome you for the press conference of All Women Thunderbolt Cup. My name is Pawan Kumar Patodia. On my left is Sumed Patodia, Team Director. I am owner and chairman, co-owner and chairman. On my left to left is Mr. Bineet Bhandari, co-owner Kolkata Thunderbolt. On my right is Mrs. Ruchika Gupta, who needs no introductions. Beside her is my wife, Kanak Patodia, the libero of our volleyball team. Because I normally say she is the libero, I am the attacker, he is the blocker. And Mr. Prasanjit, sir, we are ready with your questions. Please go ahead. আপনি যা কথাটা বলছেন বাঙাল ছাড়া পুরো ইন্ডিয়াতে ভলিবল কোনো is not recognized. I'll reply in English so that it's not difficult for me. Volleyball is not a very recognized game all over India except South. Some parts of South like Kerala, Karnataka, Chennai is very, very popular. Every day have matches. And at night, 8 o'clock, the matches start, 20,000 to 30,000 people come. But unfortunately, after being third most played game in India, still there is no recognition and name and fame for this because there is a polarization of sports in India for cricket and football. All of us love cricket. Even I love my Virat Kohli. I love my Bajrang Bhutia. Yeah, I'm a big fan of them. And when Bajrang Bhutia was supposed to be here today, but he missed it out. So what I'm trying to say is, India cannot get Olympic medals only by playing cricket and football because cricket is being played by only 12 countries in the world. So India GDP is going very, very good. Relations all over the world is very good. What we are lacking is only sports. And no country is complete without sports. And what better place to start with? Bengal is known for its heritage, its arts, its culture. Arts, culture and sports goes in hand. So we have to do something. There was a new league starting in January 2022. I found that there is an opportunity. I jumped into it. Fortunately or unfortunately, we became season 1 champion. After becoming season 1 champion, social responsibility is casted upon you that what you are doing for the game which has given you so much name on the game. I am coming from a very humble family.
And trust me guys, in 40 years of earning money, I have practiced about 6 countries. कोई नाम नहीं हुआ, गूगल पे 2 पन्ने खुलते थे, एक विच आर द कंपनीज आई एम डायरेक्टर और मेरा लिंक्डइन अकाउंट कौन सा है. टुडे इन 4 months बहुत पैसे नहीं खोए, 70,000 पन्ने खुलते मेरे, 70,000 पीपल ऑल ओवर इंडिया, दे नो मी पर्सनली, दे रिक्वेस्ट मी कि सर हमारे स्टेट को अपने साथ ले लो. आज मैं 12 स्टेट के लिए बैठा हूँ. बंगाल इज सराउंडेड बाय 12 स्टेट्स, 7 नॉर्थ ईस्ट. गोविंदा प्लीज सुन सर, आप नहीं बोल. बंगाल इज सराउंडेड बाय 12 स्टेट्स. दोज आर अरुणाचल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, बिहार, Odisha, Jharkhand, and now one more added yesterday by me, that is Chhattisgarh. So now this Pawan Patodia, when we took the game, my son was really afraid that पापा हम लोग तो अकेले हैं नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, और वहाँ पर तो यार इतना साउथ में, छोटे से साउथ में 4 टीम है. मैं बोला बेटा शेर जंगल का अकेला राजा होता है. तो आज ये पवन पटोडिया 13 स्टेट का बेताज बादशाह है, और ये 13 स्टेट में मुझे वॉलीबॉल को इतना ऊंचा ले जाना है कि जहां पर एक बार लोग देखें. आपको आश्चर्य होगा, इस पागल ने 4 दिन पहले एलन मस्क को एक मेल लिखा है, आई विल पे यू 100 करोड़ रुपीज़ 1 मिनट मेरे वॉलीबॉल को स्पेस में खिला दो. 1 मिनट पैसा मिल जाएगा मुझे, उसका स्पॉन्सर मिल जाएगा. सवाल क्या है, 83 का वर्ल्ड कप अगर नहीं होता ना तो आज ये क्रिकेट की दीवानगी नहीं होती. अब लाइन को तो छोटा नहीं कर सकता, तुम पब्लिक मारेगी मेरे को, तो लाइन बड़ी खींचना है मुझे, बड़ी लाइन मेरे दिमाग में. मैं मोटी बुद्धि वाला हूँ. मेरे को लगा कर यार कोई पूछेगा वॉलीबॉल, बोले हम तो स्पेस में तो खेलते हैं, उससे आगे की बात कर. चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बस कोशिश जारी है. एंड दैट इज़ हाउ यू इरेज. आपको शायद मालूम नहीं होगा, 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, बीसीसीआई के पास 1 लाख रुपया नहीं था टीम को ऑनर करने के लिए. उस समय वो लता मंगेशकर के पास गए थे. लता मंगेशकर ने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया था जिसमें 20 लाख रुपया उठा था. उस 20 लाख रुपये से उन्होंने 1-1 लाख रुपया सब प्लेयर को दिए और प्लेयर्स को फेलिसिटेट किया. आज वो बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट ये है बोर्ड है. दूसरी बात, इसके पहले कि आप मुझे बम्बार्डिंग करना शुरू करें, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं मारवाड़ी, बिना मतलब के बिजनेस में क्यों घुस गया, मेरा जवाब है जगमोहन डालमिया मारवाड़ी क्रिकेट का बादशाह, पवन पटोडिया मारवाड़ी बादशाह. और दूसरी चीज़ एक और है सर, क्या होता है कभी कभी आदमी 60 साल की उम्र में सठिया जाता है. मैं जब 60 का हुआ सठिया गया, बॉलीवुड पकड़ लिया. लेकिन मेरा बेटा एक लिविंग एग्जाम्पल है डीएनए डिफेक्ट का. ही इज़ डीएनए डिफेक्ट. वो इसलिए डीएनए डिफेक्ट है क्योंकि ये जो लड़का है ये आईवी लीग यूएस से पढ़ा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, आईआईएम अहमदाबाद का ग्रेजुएट है. इसको इकोनॉमिक फोरम में जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोटिस आया, रिक्वेस्ट आई. इसको 90 लाख की नौकरी मिली. मेरा बेटा नौकरी पर जा रहा था, उसको अपना बाप का बिजनेस नहीं करना था. उसके बावजूद भी इसने वॉलीबॉल को पकड़ा. शायद डीएनए डिफेक्ट होगा इसीलिए पकड़ा, नहीं तो कोई दूसरा पकड़ता नहीं. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, इस तरह के सवाल ये क्यों, कल मैं हैंडबॉल पकड़ता तो भी आप वही पूछते, वो ना पूछें. आप मुझे ये पूछे मेरे प्लान्स क्या हैं, हाउ डू आई गो अबाउट इट, व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू फॉर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के मैचेस क्यों. आई विल बी प्लीज टू रिप्लाई. प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्यूचर कोर्स आपका क्या होगा यहाँ? देखिए सर, ऐसा है कि हम आज आपको इस माध्यम से बताना चाहते हैं, यहाँ से आप 80 किलोमीटर दूर जाइए, ज़्यादा नहीं 80 किलोमीटर, आपको ऐसे ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ एजुकेशन तो नहीं है, जिसके लिए रुचिका दीदी ने बीड़ा उठा रखा है. उनके अपराजिता में मैंने सुना था, उस गांव में लोग वॉलीबॉल लेकिन खेल रहे हैं, लेकिन रस्सी से 2 गाज में बांध के एक रस्सी, नेट नहीं है, और भाई साहब वो कपड़े की वॉलीबॉल से खेल रहे हैं. ये पवन पटोडिया ने ये फैसला किया है. मैं सर 7 अप्रैल एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, मैं ब्रह्मपुत्र लीग, पहली साल उसमें 150 टीम्स थी, दूसरी साल 262 टीम थे, इस साल 340 टीम है. ये ग्रास रूट लेवल पर बच्चों के काम करते हैं. प्रशांतो बोरकाकोटी जो चीफ रेसिडेंट ऑफिसर है ऑयल इंडिया के, जो कि चीफ सेक्रेटरी से बड़ा पोस्ट होता है एक स्टेट में, उन्होंने मुझे बताया 2 बातें जो मुझे बहुत दिल में लग गई. उन्होंने पहले मुझे बोला कि पटोडिया साहब, हमने ग्रास रूट लेवल पर टीम बनाई, हमने स्टूडेंट्स बनाए, हमने टूर्नामेंट्स कराए, हमने चैंपियंस बनाए, उसके बाद क्या.
फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, पटोडिया साहब, हम जब टीम बनाने गांव गांव घूम रहे थे, हम एक गांव में गए जहां लोग तामुल गाछ, मतलब सुपारी का गाछ, 2 तामुल गाछ पे रस्सी से लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे। हमने उन्हें बोला कि हम तुमको नेट देते हैं। उन्होंने बोला भाई साहब हम खुश हैं, लेकिन इससे 6 किलोमीटर आगे एक गाँव है, वहाँ लोग कपड़े की वॉलीबॉल से बॉल खेलते हैं। 7 अप्रैल को मैं ऑयल इंडिया के प्लेटफॉर्म से ब्रह्मपुत्र लीग में एड्रेस कर रहा था एज ए चीफ गेस्ट। मैंने उस दिन प्रॉमिस किया था कि 1200 गांव आसाम को मैं एक वॉलीबॉल, एक नेट और 12 जर्सी हर गांव को दूंगा। फिर मुझे मालूम चला कि ये 13 स्टेट में 26 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति अपने देश की द्रौपदी मुर्मू से मिला था। उन्होंने कहा, हालांकि मुझे 3 मिनट का टाइम दिया था मिलने का, फिर हमारी मीटिंग 27 मिनट हुई। उन्होंने मुझे बताया कि पवन, जब मैं गवर्नर थी, उसके पहले जब मैं टीचर थी, हमने देखा कि ये जो आदिवासी हैं, ये जो ट्राइबल्स हैं, ये जो बच्चे हैं, इनमें टैलेंट्स बहुत हैं, लेकिन इनके पास संसाधन नहीं है। अगर आप इन बच्चों के साथ काम करेंगे तो शायद खेलो इंडिया में बहुत से लोग ऐसे होंगे। आज इंडिया ओलंपिक में, क्रिकेट तो ओलंपिक में है ही नहीं क्योंकि सिर्फ 12 देश खेलता है, लेकिन आज इंडिया, अगर आप देखें भाई साहब, तो इंडिया ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं करती है। लेकिन वादा इस पवन पटोडिया का 14 साल के वनवास के बाद, यानी कि 2022 से 2036 तक का वनवास के बाद 2 मेडल मैं लेके आऊँगा ओलंपिक में, चाहे ब्रॉन्ज ही हो, एक लेडीज़ वॉलीबॉल, एक जेंट्स वॉलीबॉल। कितनी टीम खेल रही है और कहाँ से टीम आई है? Sir, right now there are 8 teams playing with us today. So this is the second edition of what we created. हमने पिछले महीने इस कॉन्सेप्ट का लॉन्च किया था, थंडरबोल्ट्स कप, जिसमें हमारे साथ 48 टीमें, 48 टीम्स खेली थी। वो सारी मेंस टीम थी। आज हमारे साथ 23 डिस्ट्रिक्ट से थी, 22.5 लाख से लोग सब जुड़े। हमें डर लग रहा था कि ये 48 छोड़िए, कलकत्ता की 24 पूजा टीम आती है तो झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, लेकिन सब 48 टीम के बच्चे पाँव धोके गए। यहाँ मैं कई से रिपोर्टर यहाँ मैं देख रहा हूँ जो इन्होंने पूरा मैच कवर किया था। ये हमारे टेक्निकल टीम्स हैं, ये बताएंगे आपको। सर, एक एक बच्चे ने जो कॉम्प्लीमेंट लिखा, मतलब सर कुर्बान है सर उनके ऊपर। इसलिए उस दिन हमसे बच्चों ने पूछा था, लड़कियों ने पूछा था कि हमारा मैच कब कराएंगे। हमने कहा था 50 दिन में कराएंगे। आज बेटे ने मेरे को पूछा, पापा 23 तारीख की क्यों, फ्राइडे को क्यों? बोला बेटा जेंट्स का टूर्नामेंट 23 को हुआ था, आज 1 महीना हो रहा है, इसलिए आज हम लेडीज़ का करेंगे। हमारा टूर्नामेंट ओरिजिनली और कहाँ पे होने वाला था बेटा? ऑर्किड एरिना में होने वाला था, लेकिन आज बारिश की बहुत संभावना थी। बेटे ने बोला मुझे, पापा एक तो मैच डिले हो जाएगा, वैसे मेरी लड़कियां न तो मट्टी की बनी है न मोम की बनी है, फौलाद की बनी है, लेकिन पानी पड़ने के बाद जर्सी चिपक जाए तो अपनी बच्चों को हम उस पर देख नहीं सकते। हमने रेलवे से रिक्वेस्ट की, जाके दुबे सर से हम मिले, और आई एम थैंकफुल टू ईस्टर्न रेलवे कि उन्होंने एक प्राइवेट पार्टी को इतना बड़ा स्टेडियम भाड़े पर दिया। वी आर रियली ग्रेटफुल टू देम। वी आर ग्रेटफुल टू ऑल द टीम्स इंक्लूडिंग ईस्टर्न रेलवे हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड हु आर द टीम्स ही विल इन्फॉर्म यू। तो हमारे यहाँ पे ऑल ओवर बंगाल से प्लेयर्स हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो बंगाल कैंप के लिए भी जाते हैं। 12/7 से लेकर मोगरा तक, सलकिया तक, हावड़ा तक हमारे यहाँ पे सारे प्लेयर्स हैं। दीज आर नॉट ऑल ऑफिशियली रजिस्टर्ड क्लब्स, क्योंकि हमने ये ओपन टू ऑल टूर्नामेंट किया, हम ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट नहीं करा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है, आप टीम बनाइए, आप हमारे साथ रजिस्टर कीजिए, हमारी टेक्निकल टीम आपको इवैल्यूएट करेगी, एंड इफ़ यू आर अ गुड टीम who can compete at a good level, then you will get to play, because this is a tournament of good volleyball players. We are also going to have junior tournaments जिसमें junior players खेल सके और अपना गेम लेवल बढ़ा सके। लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के साथ अगर हम एक बहुत कमज़ोर टीम को खिलाते हैं तो वो सिर्फ निराश होकर घर जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। So those are the only criteria for today's tournament. ये टीम बनाना कितना टफ लगा आपको, एक महिला को लेके करना बंगाल में? आपको जान के आश्चर्य होगा मैडम, मैं यहाँ 12 दिन पहले मैच देखने आया था। उस दिन मैंने रेलवे की 5-6 टीम है वॉलीबॉल की, ब्लू, येलो, और उस दिन से मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि ये जो पीले रंग की ड्रेस में महिला खड़ी हुई है, इसको अगर एक बॉल इन लड़कियों की सर में लग जाएगी ना, 12 हड्डी टूटे, 12, हो सकता है 14 भी टूट जाए, डिपेंड करता है कितनी दूर पर खड़ी है, लेकिन 12 पक्की टूटेगी। ये जो महिला है ना, रणचंडी का है, शेरनी है,
और ये दुर्गा का अवतार है, इसीलिए 7 दिन पहले ये अवसर किया। पहला हमने प्रोग्राम किया था 23 तारीख को, बिकॉज दीदी ने हेरिटेज डिक्लेयर किया था 1 सितंबर को। हमने सेलिब्रेशन 7 दिन पहले चालू कर दिया। 3 दिन बाद महाल्या है, हमने फिर से सेलिब्रेशन फिर से चालू किया। दुर्गा आज से ही ट्रॉफी लेके आ रही है। To be honest, ये बार I आज think- दुर्गा ट्रॉफी नहीं है। To be honest, I think it was easier to get women teams than the men's Yes. teams, because जब हम Women men's are more tournament- professional in Bengal. Let me tell you, women athletes are more professional in Bengal and they are more better players. एंड एक रिलेशन भी था पूरी स्पोर्टिंग कम्युनिटी के साथ जो पहले टूर्नामेंट के साथ हमने क्रिएट कर लिया था. सो नाउ एवरीबडी स्पेशली इन द वॉलीबॉल कम्युनिटी दे आर अवेयर ऑफ वो कोलकाता थंडरबोल्ट्स आर, दे नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव. एंड हम अकेले चले थे, लोग मिलते चले गए और फिर काफिला बन गए. वाह, Who is the brand ambassador of this entire event? Pawan Patodia. He is the biggest brand. 1 minute. He is the biggest brand in volleyball today. 1,37,000 people have Googled my account in last 3 days. I have 5 crore fans and 250 crore valuation. And this year I will sell my chest for 5 crore rupees. No owner has sold his chest jersey of the owner for 5 crore. So biggest ambassador for any team or for any sports is going to be Pawan Kumar Patodia. They call me Juice. Juice means father of thunders. Yes, I am father of thunders.